Ladies and gentlemen, today we have to discuss a very crucial topic, and the topic is to go against the flow. To go against the flow. Now, extraordinary people, they do not do ordinary things. That's why they are extraordinary. Extraordinary people do not do ordinary things. That's why they are called extraordinary. So please write a comment, everyone, that extraordinary people do not do ordinary things, and that's why they are called extraordinary. Extraordinary people do not do ordinary things, and that's why they are called extraordinary. So, can you make a comment that extraordinary people do not do ordinary things, and that's why they are called extraordinary? So, everybody, please write this comment. Imran Khan, thank you. I saw the first comment. Extraordinary people do not do ordinary things, and that's why they are called extraordinary. Now, why they are extraordinary? Because they are not ordinary and they don't do ordinary things. So, the toppers of CSS, PMS, PCS, what they do things which other people don't do. So, this is creativity, this is doing something different. Now, conventional wisdom, please write it. Conventional wisdom tells us to cover syllabi and read books. Conventional wisdom tells us to read books and cover syllabi. Please write this as a comment. Conventional wisdom tells, this is subject verb agreement, tells us to read books and cover the syllabi. But the real wisdom tells us that this is the biggest cause of failure in competitive exams. Thank you, Sanam Altaf. Conventional wisdom tells us to cover syllabi and to read the books. This is conventional wisdom. आम लोग यही बातें करते हैं, भाई जी सिलेबस पढ़ो और किताबें पढ़ो, CSP बन जाओगे. But today we are going against the flow, and we are discussing something which is extraordinary, and that is the reason that many people they fail examination and others they pass examination. Where is the difference? So this is the difference, that just reading books and covering syllabi is the biggest cause of failure.
Why we claim this? Today in the notes, I have given you some more than 10 reasons in the notes that why this is the reason, the biggest reason of the failure. आज के नोट्स में पढ़ेंगे कि भाई मैंने आपको 10-15 रीजंस दी है कि ये बात क्यों सही है कि सिर्फ किताबें पढ़ना और सिलेबस कवर करना जो है ये एक सबसे बड़ी वजह है कि लोग कंपेटिटिव एग्जाम्स में मुकाबले के इम्तिहानात में फेल होते हैं. I have written you in text and now I am discussing it so that you understand it. Why it is so? Because everybody can do so. Every ordinary person can do so. आम बंदा ये काम कर सकता है. बुक स्टोर चले जाओ, किताबें खरीदो, बैठ जाओ, पढ़ना शुरू करो, सिलेबस का एक एक टॉपिक कवर करो. दिस इज ऑर्डिनरी थिंग. Now what is required? क्या होना चाहिए? So please make another comment that reading books and covering syllabi, reading books and covering syllabi is arborescent learning. Please make a comment everybody. ये comment से ये होता है कि आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो चीज़ फिर आपको याद रह जाती है. Reading books and covering syllabi is arborescent learning. There are two types of learning. Number one is arborescent and number two is rhizomatic. For competitive exams, both types of learning are required. Both types of learning is required. Subject verb agreement is required. Learning is singular. If you focus on types, so then you will say are required. So please make a comment, everybody. Reading books and covering syllabi is arborescent learning. Now, there are two types of learning. Number one, arborescent. Number two, rhizomatic. Arborescent, the word arbor means tree. The word arbor means tree, tree-like. Arboriculture means the study of trees. Arboriculture, like horticulture, agriculture, arboriculture, floriculture. So when we have arboriculture. So arboriculture means the study of trees. दरख्तों के मुताले को क्या कहते हैं? Arboriculture. So arborescent means like trees. दरख्त की तरह. एक दरख्त है तो वो from top to bottom या bottom to top, it is called tree. ये ट्री है, ठीक है, जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे हाइट में बढ़ती है. It goes. So when we study books or we cover syllabi, so we start from bottom and we go to the top. पहले टॉपिक, उसका डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, ब्रांचेस, डिटेल्स, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं और सिलेबस को कवर करते हैं. सिलेबस का टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4 एक एक सिलेबस हम कवर करते हैं और किताबें पढ़ते हैं. सो दिस इज arborescent learning. Arboriculture means the study of trees. So this is a tree-like learning or learning from bottom to top or वर्टिकल लर्निंग. इसको वर्टिकल लर्निंग भी कहते हैं. वर्टिकल, ऊपर से नीचे से ऊपर, वर्टिकल, दरख्त की तरह. So competitive exams require both types of learning.
अब लोगों का ये ख्याल होता है कि जी मैंने किताबें पढ़ ली और सिलेबस कवर किया, बस जी मैं तैयार हो गया हूँ। इसी माइंडसेट से वो जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं और फेल होके आते हैं। They don't know the second type of learning, which is rhizomatic learning. Now, rhizome spreads, and that's why it is also called horizontal learning or lateral learning. ठीक है, ये लेटरल लर्निंग है। वेल्थ, ये वसत में जाते हैं, पहलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ये सिंपल सिंपल लर्निंग नहीं है। आप पढ़ रहे फलस्तीन के बारे में, लेकिन फलस्तीन का डॉट जो है वो आप कनेक्ट करते हैं कश्मीर के साथ। तो अर्बोरेसेंट जो ट्रेडिशनल लर्निंग है, आम लर्निंग है, ऑर्डिनरी लर्निंग है, वो ये क्या फ़लस्तीन के बारे में पढ़ते हैं जी, फ़लस्तीन का ये हिस्ट्री है, ये कॉजेज़ है, ये जो है अभी करंट सिचुएशन है, ये सॉल्यूशंस है। आपके पास ये नॉलेज आ गया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं है कि डिस्कस पैलेस्टाइन इशू या द हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टाइन। एग्जाम में ही नहीं होता। एग्जाम में क्या होता है? हाउ कश्मीर इशू कैन बी रिलेटेड टू पैलेस्टाइन एंड हाउ द ग्लोबल कम्युनिटी कैन प्ले अ रोल टू रिजॉल्व बोथ द इश्यूज। अब ये क्वेश्चन जो है ये नोट्स में भी नहीं है, ये किताब में भी नहीं है। तो ये आपकी राइजोमेटिक लर्निंग है। योर क्रिटिकल थिंकिंग, योर क्रिएटिविटी, योर पर्सनालिटी, योर डिस्कशंस, योर डिबेट्स, दीज थिंग्स इंक्लूड राइजोमेटिक लर्निंग। आपका दिमाग इतना शार्प होता है, इतना स्मार्ट होता है कि वो डॉट्स को कनेक्ट करता है। आम बंदा कश्मीर को अलहदा पढ़ेगा, फलस्तीन को अलहदा पढ़ेगा। जो राइजोमेटिक लर्निंग है, जो क्रिएटिव लर्निंग है, वो दोनों को मिलाएगा और फिर उसको ग्लोबल कम्युनिटी के साथ अटैच करेगा। नेटवर्किंग। राइजोम की तरह पहनना, जिसको राइजोम होता है ना, जिंजर अदरक का जो होता है राइजोम, तो ऐसे वो कम्प्लेक्स होता है। ये जिंदगी आसान नहीं है, मतलब नॉलेज भी आसान नहीं है। लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, नॉलेज इज कॉम्प्लेक्स, वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए आम जहन जो है ये चीजों को नहीं समझता कि यार 52 मुसलमान मुल्क है और छोटा इजराइल जो है वो रोज 300, 400 लोग मार रहे हैं और बाकी लोग आराम से बैठे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। रूस और चाइना भी कुछ नहीं कर रहा। तो ये क्या चक्कर है? अब ये चीज आपको किताब में नहीं मिलेगी। यू हैव टू एनालाइज इट, यू हैव टू थिंक ओवर इट। आम स्टूडेंट क्या कहेगा? वो किताब उठाएगा, नोट्स पढ़ेगा, बस जी खत्म। तो जो चीजें गूगल में नहीं है, जो नोट्स में नहीं है, बुक्स में नहीं है, दैट इज कॉल्ड राइजोमेटिक लर्निंग। दैट इज योर ओन नॉलेज क्रिएशन, योर ओन एनालिसिस, योर ओन ओपिनियन, योर ओन एनालिसिस। जो चीज आप किसी से भी नहीं सीखते और वो खुद आपका अपना इल्मी पैदावार है, योर ओन नॉलेज क्रिएशन। अभी जो लेक्चर में दे रहा हूं तो ये मैं किसी किताब का खुलासा नहीं बता रहा, या मैं किसी पैटर्न पे नहीं जा रहा। मैं एक गैर रिवायती तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिकॉज आई एम अ राइजोमेटिक लर्नर। पाकिस्तान में लोग कहते नहीं जी सीधा सीधा बताओ, ये दाव पेच हमें समझ नहीं आती, क्योंकि वो राइजोमेटिक लर्नर्स होते नहीं है, वो कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते। वो कहते जी सब कुछ आसान आसान, उनको टोटे छोटे दे दे बस जान छुड़ाए। लेकिन दुनिया कॉम्प्लेक्स है, नॉलेज कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ किताब पढ़ने या सिलेबस कॉर्नर से नहीं होगा। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, डिस्कशंस, डिबेट्स, क्वेश्चंस,
आंसर्स, ऑल दिस इज राइजोमैटिक लर्निंग, और यही आपको CSP बनाएगा। अगर आप सिर्फ किताबें उठा के पढ़ते हैं और सिलेबस कवर करते हैं, सो हाउ यू विल कन्वे दैट इंफॉर्मेशन टू द एग्जामिनर, हाउ यू विल डिस्कस, हाउ यू विल एनालाइज। क्वेश्चन ये होता है कि एनालाइज, डिस्कस, आर्ग्यू। आपको नॉलेज आपसे नहीं मांगता, डेटा आपसे नहीं मांगता कि जी हमें नॉलेज दे दो कि फलस्तीन क्या है। वो कह रहे फलस्तीन को डिस्कस करो, अपने अंदाज से डिस्कस करो। So I am trying to make you rhizomatic learner. It's a long process. It takes time. And I have given you the notes also so that you will understand it. The second part of my today's lecture is roadmap for coming competitive exams. मैंने आपको नोट्स में एक टिक टॉक वो मंथ वाइज वो दिया है रोड मैप कि भाई क्या क्या होगा। उसमें जो 2023, 24, 25 वगैरह है वो एग्जाम्पल्स है, उसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपका एग्जाम कब है, तो दैट यू कैन चेंज इट। अब मैंने जो आपको दिया है दिस इज आर्बोरेसेंट, आप इसको कैसे यूज करोगे अपने मकसद के लिए, दैट इज राइजोमैटिक। अब हर बंदा कहते हैं कि नईम खान मेरे लिए रोड मैप बनाए, मेरे साथ बैठ जाए, मेरा काम आसान करे, तो ये आर्बोरेसेंट है। और नईम खान ने आपको जनरल ग्लिम्सेस दे दिए, पॉइंट्स दे दिए, डॉट्स दे दिए। अब उन डॉट्स को आप खुद मिलाते हैं, खुद अपनी फायदे की चीज उठाते हैं। सो दैट इज राइजोमैटिक लर्निंग। सो आई होप यू गॉट द बेसिक मैसेज एंड रीड द नोट्स आल्सो so that you are 100% clear. Now if you have any question, so please ask. जो questions करते हैं वो rhizomatic learners होते हैं। जो क्वेश्चन नहीं करते करे मैं किताब में पढ़ लूंगा, क्या जरूरत है। और जो किताब में चीज है या गूगल में जो चीज है उसका क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। वो तो चैट GPT में या जो है ना गूगल में या किसी किताब में वो चीज डालो तो आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन वो करे जो किताब में नहीं है और गूगल में नहीं है। If there is no question, so please make a short comment. Sir, I don't have a question. Thank you for today's lecture. I will read the notes and I will understand that why only reading books and covering syllabi is not the solution to competitive exams. I have to go extra mile beyond that. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किताबें छोड़ना है या आपने सिलेबस कवर नहीं करना, नहीं। हाँ, is rhizomatic learning applied knowledge? बेसिकली अब नॉलेज तो आप अप्लाई करते हैं, सो दैट इज नॉट राइजोमैटिक, दैट इज arborescent. Rhizomatic learning is the application of your understanding. There is a difference between knowledge and understanding. नॉलेज जो है आपके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई आपको कहता है कि जी व्हाट आर द काजेज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की क्या काजेज है, आप काजेज पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो है वो नहीं है अपना राइजोमैटिक लर्निंग। राइजोमैटिक लर्निंग ये है कि मलेरिया को तुम जो है टाइफाइड के साथ मिलाओ या मलेरिया का कोई ऐसा वैक्सीन बनाओ जो पहले से मौजूद नहीं है। सो दैट इज राइजोमैटिक लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग इज द एडवांस्ड स्टेज ऑफ नॉलेज। व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग इज टू यूज नॉलेज एज पर सिचुएशन। सिचुएशन के मुताबिक नॉलेज को इस्तेमाल करना जो है दैट इज अंडरस्टैंडिंग। And the test of understanding is expression in your own way. जब आप टॉपिक पे एक्सप्रेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग है। उस टॉपिक को समझना जो है वो नॉलेज है।
आपने एक टॉपिक को समझ लिया कि भाई फ़लस्तीन क्या है, ये नॉलेज है। फ़लस्तीन पे बोलना, लिखना, डिस्कस करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, ये अंडरस्टैंडिंग है। So in simple language, we can say that understanding is rhizomatic learning. PPS, I will give some special classes for PPS, but our December course, which is English and general competitive exams, so PPS has the same syllabus. Please send me the PPS syllabus so we can include some topics from particularly from PPS syllabus. However, the same things. अगर आप राइजोमेटिक लर्नर बन जाए, क्रिएटिव लर्नर बन जाए, स्मार्ट लर्नर बन जाए, तो आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। अगर आप एक एक चीज़ को पढ़ना चाहते जी, पीएमएस में अलहदा पढ़ूंगा, सीएसएस अलहदा पढ़ूंगा और पीपीएस अलहदा पढ़ूंगा, तो ये ट्रेडिशनल लर्निंग है, ये अर्बोरेसेंट लर्निंग है। अगर आप ओवरऑल काबिल है और आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, सो दैट इज arborescent, rhizomatic learning. Any other question? So if there is no question, no discussion, जब discussion होती है, so this is rhizomatic. जब आप लेक्चर सिर्फ सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, so that is arborescent learning. और ये आसान, हार्ड वर्क इज ईजियर देन स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। मेहनत जो है वो स्मार्ट वर्क से बड़ा आसान है। हार्ड वर्क क्या है जी, किताब उठाओ, बैठो, नोट्स बनाओ, स्टडी करो, चाय पियो, ये हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क ये है कि भाई डिस्कस करो, आर्ग्यू करो, क्वेश्चंस करो, अपना ओपिनियन दे दो, चैलेंज करो। So all the best. Thank you, Haris, for your thanks. All the best. See you tomorrow.